Good morning, I am Sheetal. Today I am going to make a presentation video on the topic of infrared spectroscopy. So, infrared spectroscopy is the branch of science which deals with the study of interaction of infrared radiation with matter. That is called infrared spectroscopy. So, during the interaction of IR radiation with matter, vibration in the bone behaves like a spring. It means the bone behaves like a spring. So, further, different bones respond to the vibrating energy slower, medium, and faster. It means when the matter is interacted with the IR radiation, the vibration in the band takes place, and different bones जो होते हैं वो respond करते हैं differently. Like weak bone वाइब्रेट करेगा फास्टर एंड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो वाइब्रेट करेगा स्लोअर. दिस रिस्पॉन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अ इंस्ट्रूमेंट एंड दिस रिस्पॉन्स को हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं एंड इनटू द रिप्रेजेंट करेंगे इनटू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. Example is, for example, here we have seen that this is a carbon atom, and here is a bond with the oxygen atom. So when this compound is interacted with the IR radiation, then this bond behaves like a spring, and this molecular vibrations takes place in the band of the CO bond. So here are the types of molecular vibrations. So infrared radiation causes strong molecular vibrations, include stretching and bending in covalent bond. Specific bond respond to the specific frequencies of IR radiation. Covalent bond can vibrate in several ways. For example, first is stretching vibration. So in the stretching vibration, the vibration in which the distance between the two atoms increase and decrease, but the atom will remain on the same bond axis is called stretching vibration. For example, we have seen here this example that in this carbon atom, this distance between the two atoms will increase or decrease in case of stretching vibration, but their bond axis will remain same, then this vibration is called stretching vibration. There are two types of stretching vibrations. First is symmetrical stretching and second is asymmetrical stretching. So in case of symmetrical stretching, the distance between the stretching vibration in which both atom moves in or out with respect to the central atom is called symmetrical stretching. For example, here we have taken example. For example, this is the CO2 molecule, and here central atom is carbon and the side atoms, neighboring atoms are the oxygen. So in case of symmetrical stretching, this bond, either this bonds will move in, both the bonds will move in, or both the bonds will move out. Then this is called symmetrical stretching. Here we have taken the example of CO2. But in case of asymmetrical stretching, the stretching vibration in which one bonds move in and other moves out with respect to the central atom is called asymmetrical stretching. So asymmetrical stretching requires more energy than the symmetrical stretching, because in case of asymmetrical stretching, two bonds move differently, and to hold these two bonds at the particular position is very difficult than in case of symmetrical stretching. So a band of asymmetrical stretching appears at higher value of frequency or wave number. Here we shows the asymmetrical stretching in case of CO2. So in case of asymmetrical stretching, one bond moves out and the other bonds move in, then this is called asymmetrical stretching. Then second type of vibration is bending vibration, the vibration in which the distance between the two atoms remains same but the position of atom changes. In case of स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या हो रहा था कि जो डिस्टेंस था बिटवीन द एटम वो चेंज हो रहा था, बट बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स है वो सेम है, बट जो बॉन्ड एक्सिस है या जो एटम की पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड इज कॉल्ड बेंडिंग वाइब्रेशन. टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन दो तरीके से हो सकती है. एक होती है इन प्लेन बेंडिंग और एक होती है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. फर्स्ट इज इन प्लेन बेंडिंग के अंदर क्या होता है, द वाइब्रेशन इन विच द एटम रिमेन्स इन द सेम प्लेन ऑफ द सिस्टम. इट मीन्स मूवमेंट ऑफ द एटम्स विल टेक प्लेस बट इन द सेम प्लेन ऑफ द सिस्टम, देन दैट इज कॉल्ड इन प्लेन बेंडिंग. टाइप ऑफ इन प्लेन बेंडिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है. एक तो होती है सिजरिंग और एक होती है रोकिंग. सिजरिंग के अंदर क्या होता है, द वाइब्रेशन इन विच द टू एटम अप्रोचेज टुवर्ड्स ईच अदर.
in the same plane of the system is called scissoring. For example, हम सीजर का एग्जांपल ले सकते हैं. तो सीजर में जब जो दो ब्लेड्स होते हैं सीजर के वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, देन दिस बेंडिंग इज कॉल्ड सीजरिंग बेंडिंग. इट मीन्स जो टू बैंड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे. सेकेंड इज रोकिंग. Rocking, the vibration in which the two atom moves to the same side of the same plane of the system is called rocking. For example, हम rocking chair का एग्जांपल ले सकते हैं. जब वो मूव करेगी तो जो उसके दोनों साइड है वो सेम साइड की सेम प्लेन में मूव करेंगे एंड सेम साइड में मूव करेंगे. तो फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल ले रखा है. तो इसके जो दोनों बैंड है वो या तो दोनों इधर मूव करेंगे अंदर की तरफ या दोनों ही बाहर की तरफ मूव करेंगे. तो वो होती है रॉकिंग इन प्लेन बेंडिंग. उसके बाद आती है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में होता है द वाइब्रेशन इन विच द एटम मूव्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द सिस्टम. इट मीन्स मूवमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस बट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. टाइप ऑफ आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होते हैं. पहला होता है वैगिंग. वैगिंग इज द वाइब्रेशन इन विच द टू एटम साइमल्टेनियसली मूव्स above or below the plane of the system is called wagging. सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है. इसके दो बैंड है. ये या तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे दोनों साथ में या नीचे की तरफ मूव करेंगे. तो उस बेंडिंग को हम बोलेंगे वैगिंग आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. और ट्विस्टिंग, द वाइब्रेशन इन विच द वन एटम मूव्स अप एंड द अदर एटम मूव्स डाउन द प्लेन ऑफ द सिस्टम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड ट्विस्टिंग. It means here are two bonds, then one will move out above the system and other will move below the system. Then this type of bending is called twisting out of plane bending. Here we have made a flow chart for type of molecular vibration. For example, molecular vibrations दो तरीके की होती है. पहली stretching molecular vibration and second is bending molecular vibration. Stretching में जो होता है वो distance change होता है लेकिन bond जो atoms होते हैं वो same bond axis में रहते हैं एंड यहाँ पर distance जो होता है सेम रहता है लेकिन position of atoms change होती है. फिर उसके बाद जो सिमेट्रिकल बेंडिंग होती है सिमेट्रिकल वाइब्रेशन होती है वो दो तरीके की होती है. एक होती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक होती है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है कि दोनों बॉन्ड्स जो होते हैं वो या तो इन मूव करेंगे या आउट मूव करेंगे. और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में एक बॉन्ड इन मूव करेगा और एक बॉन्ड आउट मूव करेगा. उसके बाद जो होती है बेंडिंग. बेंडिंग के अंदर दो तरीके की होती है. एक होती है इन प्लेन और एक होती है आउट ऑफ प्लेन. फिर उसके भी सब पार्ट होते हैं. इन प्लेन के होते हैं सिजरिंग एंड रोकिंग. सीजर का एग्जांपल ले सकते हैं. इट मीन्स जो ये दो बॉन्ड है एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे. रोकिंग में ये दोनों जो बैंड हैं वो या सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे या तो एक दूसरे की तरफ मतलब डिफरेंटली मूव करेंगे. और आउट ऑफ प्लेन के अंदर एक होता है वैगिंग और एक होता है ट्विस्टिंग. वैगिंग के अंदर या तो दोनों अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन मूव करेंगे और ट्विस्टिंग के अंदर एक अबो द प्लेन मूव करेगा एंड एक बिलो द प्लेन मूव करेगा. अब एनर्जी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रेचिंग में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैन बेंडिंग और एसिमेट्रिकल में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैन सिमेट्रिकल. अब स्ट्रेचिंग में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रेचिंग के अंदर जो डिस्टेंस बोन लेंथ होती है वो चेंज होती है लेकिन बेंडिंग के अंदर बोन लेंथ चेंज नहीं होती है. सो बोन लेंथ को चेंज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसलिए स्ट्रेचिंग एंड मोलिकुलर वाइब्रेशन को हैपन होने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद मैटर चेंज इन मोलिकुलर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स टेक प्लेस. इट मीन्स व्हेन इंफ्रा मोलिक्यूल या मैटर जो है वो इंटरेक्ट करेगा आईआर रेडिएशन के साथ देन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो होंगे वो चेंज होंगी. तो इसीलिए जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर चेंज हो रहे हैं इसलिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे हैं. एज वाइब्रेशनल एनर्जी, अब हमें पता है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है वो एसोसिएटेड होते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स with much smaller energy caps. So rotational transitions also take place along with the vibrational transitions and vibrational spectroscopy is also called vibrational rotational spectroscopy. For example, here we have seen these are the vibrational ये है हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन. और इनके बीच में जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ ये यहाँ पे हमने शो किए हैं. यहाँ पे ये लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं विच आर मच स्मॉलर एनर्जी. सो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी
होते हैं, तो इसलिए वो रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो जाते हैं, जिसके कारण आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं। फर्दर ऑल द बोन्स इन अ मोलिक्यूल कैन नॉट एब्सॉर्ब आईआर रेडिएशन। सो मतलब पर्टिकुलर बोन जो होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं एब्जॉर्ब करने के लिए आईआर रेडिएशन या इंटरेक्ट करने के लिए, एंड दीज आर only those bonds of the molecule will absorb IR radiation which are accompanied by net change in dipole moment. So what is the principle of IR spectroscopy? This is the सिलेक्शन रूल भी हम बोल सकते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएशन को। और जिनके अंदर जिन मॉलिक्यूल के अंदर नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट होता है उन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल। और ट्रांजिशंस होती है तो इसलिए हम ट्रांजिशंस को बोलते हैं IR active transitions. Conditions for IR spectroscopy. So it states that the fundamental vibration will be IR active in the compounds which have bond having net value of dipole moment. It means IR spectroscopy will take place, या जो fundamental vibrations होंगी वो IR active कब होंगी, उन compounds के अंदर होगी which have net value of dipole moment. Or it states that any substance will absorb IR radiation and undergo vibrational transition if it has bonds with net value of dipole moment. For example, we have taken heterodiatomic molecule like HCl, HBr, etc. have bond with the separation of charges, and thus the bonds have net value of dipole moment, so they are called IR active. We have seen that here in case of HCl molecule क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस हो जाती है। इट मीन्स इट हैव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज़ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, इट मीन्स डाइपोल सेट हो गया, मतलब ये दिस इज अ पोलर कंपाउंड एंड नेट चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगी इस केस के अंदर, तो इसलिए ये आईआर एक्टिव हो जाएगा। बट इन केस ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल अगर हम लेके चले जैसे कि H2O2 एंड N2 एक्सेट्रा, सो these have bond with a zero value of dipole moment because they have no separation of charge, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है और सेम मॉलिक्यूल मतलब सेपरेशन एक होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, सो दे आर IR inactive. Symmetrical polyatomic molecule like ethane, ethyne, etc. There is also bond with zero value of dipole moment because there is no separation of charge, and these are IR inactive. Further, there are bonds with net value of dipole moment, so they are IR active. तो ये जो बॉन्ड है इस केस में यहाँ पे नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज तो होगी नहीं, तो ये जो है ये IR इनएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, IR एक्टिव हो जाएगा। Now there is fundamental vibration, the vibration which correspond to the first vibrational transition. It means zeroth vibrational level to first vibrational level on absorption of IR radiation is called fundamental vibration. For example, the vibration from V0 to V1. V0 से V1 जो vibration होगी, मोलिकुलर वाइब्रेशन या ट्रांजिशंस होगी, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। मतलब फर्स्ट से जीरो से फर्स्ट में जो वाइब्रेशन होगी उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन। उसके बाद आती है ओवरटोन्स। ओवरटोन्स क्या होती है, एनी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन इज कॉल्ड ओवरटोन्स। इट मीन्स कोई भी मल्टीपल फंडामेंटल वाइब्रेशन का उसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स, एंड ओवरटोन्स की इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है देन फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब फर्स्ट ओवरटोन्स देखते हैं। फर्स्ट ओवरटोन्स क्या होती है, द वाइब्रेशन विच अकर्स फ्रॉम जीरोथ वाइब्रेशनल लेवल टू सेकेंड वाइब्रेशनल लेवल ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। देखो यहाँ से जीरो से जो वन होगी वो फंडामेंटल वाइब्रेशन, जीरो से जो टू होगी वो होती है फर्स्ट ओवरटोन। स्टार्टिंग जीरो से ही होगी, लेकिन जीरो से वन फंडामेंटल, जीरो से टू फर्स्ट ओवरटोन, जीरो से थ्री सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन, जीरो से एन जो होगी वो n-1 ओवरटोन। तो यहाँ से n-1 का डिफरेंस हो रहा है, जैसे कि V0 से V2 जो है वो फर्स्ट ओवरटोन है, तो इसी तरीके से जो n वाली होगी वो 0 टू n-1 वाली होगी। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। सो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला यूजिंग 3n-6। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बेंजीन इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल CO2 हम बोल सकते हैं। तो बेंजीन के केस में क्या होता है,
यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल बेंजीन के केस में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम जो है वो 12 है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 × 12 - 6 = 30। मिथेनॉल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, CH2O। तीन कितने, चार, चार एटम है, तो 3 × 4 - 6 = 6। एंड फॉर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला 3n - 5। तो एग्जांपल है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर जो ये दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल एंड इसके अंदर तीन एटम है, तो इसके अंदर फॉर्मूला में पुट करेंगे 3 × 3 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 4। हेयर वी हैव कैलकुलेटेड। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो फॉर्मूले, दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, तो इसी फॉर्मूले के अंदर पुट होगा। तो थियोरेटिकली अगर हम निकालें इसके अंदर, तो तीन एटम है, तो 3 × 3 - 5 = 4 हो जाएगा। बट CO2 गिव्स 2 वाइब्रेशनल बॉन्ड्स, दो वाइब्रेशनल बॉन्ड ही देता है। उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इज IR इनएक्टिव, की जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है CO2 के अंदर, वो IR क्या होती है? इनएक्टिव होती है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दोनों मूव या तो इन मूव करेंगे, आउट मूव करेंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो IR इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अगर वो दोनों इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, तो वो एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो IR इनएक्टिव हो जाएगा। वन एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इज IR एक्टिव। लेकिन अगर एक इधर मूव कर रहा है और एक बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? IR एक्टिव हो जाएगा। एंड टू बेंडिंग वाइब्रेशन आर सेम एंड गिव्स बॉन्ड एट द सेम वैल्यूज। और अगर इस केस में बात करें तो इन प्लेन बेंडिंग होती है बेंडिंग में, और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होगी। और तो हमने देखा था कि जो इन प्लेन बेंडिंग होती है उसके अंदर वैगिंग जो होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन वाला एडअप होता है। तो इसलिए इसके केस में वैगिंग जो जाएगा वो IR एक्टिव हो जाएगा। और इस केस में, सीजरिंग जो है वो IR एक्टिव हो जाएगा, और इस केस में वैगिंग जो है वो IR एक्टिव हो जाएगा, लेकिन दोनों की सेम वैल्यू होगी। तो एक टोटल यहाँ से आएगा और एक टोटल यहाँ से आएगा, तो इसलिए जो CO2 है वो सिर्फ हमें दो वाइब्रेशनल फंडामेंटल वाइब्रेशन से शो करेगा। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो होती है वो IR इनएक्टिव होती है CO2 के केस में। उसके बाद आता है हमारे पास IR स्पेक्ट्रम, द ग्राफ विच इज प्लॉट इन बिटवीन द परसेंटेज एब्जॉर्बेंस और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर। वेव नंबर इज म्यू बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं IR स्पेक्ट्रम। पार्ट ऑफ IR स्पेक्ट्रम, अब पार्ट स्पेक्ट्रम के पार्ट होते हैं कुछ, जैसे कि पहला जो पार्ट होता है वो होता है नियर IR। नियर IR की रेंज होती है कुछ 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो होती है नियर IR की रेंज होती है। इट इज़ कॉल्ड ओवरटोन रीजन। ओवरटोन रीजन क्यों होता है? बिकॉज बैंड्स ड्यू टू ओवरटोन्स, जो ओवरटोन्स के कारण जो बैंड्स आते हैं वो इसी रीजन के अंदर आते हैं। तो इसलिए जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं नियर IR। इसकी रेंज हमें याद रखनी होती है 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद आता है मिडल IR। मिडल IR के केस में भी रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 4,000। देखो यहाँ से 4,000 खत्म हुआ, तो 4,000 से ही मिडल IR शुरू होता है, 4,000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल रीजन। तो ये वाला जो IR का पार्ट है, स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके दो सब पार्ट होते हैं। तो देखो इसकी टोटल रेंज थी 4,000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो इसके दो सब पार्ट बनेंगे वो इन्हीं रेंज के बीच में बनेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो है फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन किस लिए आता है? फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। इट रेंजेस फ्रॉम 4,000 से 1,400 सेंटीमीटर इनवर्स। इट हैज़ बैंड्स फॉर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के कारण जो बैंड आएगा वो फंक्शनल ग्रुप रीजन के कारण आएगा, और उसकी जो रेंज होगी वो 4,000 से 1,400 सेंटीमीटर इनवर्स में उसकी रेंज होगी। तो उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आता है वो होता है फिंगरप्रिंट ग्रुप रीजन। फिंगरप्रिंट ग्रुप रीजन के अंदर क्या होता है? इसकी जो रेंज होती है वो 1,400 से 667। अब देखो 4,000 से 1,400, 1,400 पे खत्म हुआ, 1,400 से शुरू होकर 667, टोटल रेंज कितनी हुई? 4,000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। इट हैज़ बैंड रिजल्टिंग फ्रॉम सम एंड डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के कारण जो सम एंड डिफरेंसेस आते हैं वो इस रीजन के अंदर आते हैं। और ये जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ये हर एक कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है, तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। याद रखना है कि जो इनेंशियोमर है उसके केस में ये सेम होता है, अदरवाइज सबके लिए ये डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड।
इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है फार IR। इसका वैसे कुछ काम नहीं होता है। इसकी रेंज होती है 667 सेंटीमीटर इनवर्स टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज़ कॉल्ड प्योर रोटेशनल रीजन। इसके अंदर रोटेशनल रीजन्स आते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं होता है। Now we have read some factors affecting vibrational frequency. So there are various factors that affect the vibrational frequency. So first is bond order. Bond order it means number of bonds. कि मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। सो मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, फॉर एग्जांपल जो सिंगल बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एल्कीन, वो बड़ा बॉन्ड होता है देन बॉन्ड इन द एल्कीन, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो बॉन्ड लेंथ कम, मोर फोर्स, मोर विल बी द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स जो हो जाए होगा वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ में हमें लगाना पड़ेगा, एंड मोर विल बी द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ही वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हेयर इन केस ऑफ एल्कीन के केस में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1300 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स। एल्कीन के केस में 1640 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। ज़्यादा हो गई 1300 एल्कीन के केस में, कम थी एल्कीन के केस में क्या हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। लेकिन एल्काइन के केस में हो गई 2300 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि दोनों से ज़्यादा है। क्यों हुई, क्योंकि इसके केस में बॉन्ड लेंथ जो हो गई वो बिल्कुल ही छोटी हो गई, एंड फोर्स कॉन्स्टेंट जो के की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इसीलिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड फैक्टर आता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशंस होती है जैसे कि sp3 sp2, जब दो ऑर्बिटल जो होती है डिफरेंट एनर्जीज की, वो मिलकर क्या बनाती है, सेम एनर्जी की न्यू ऑर्बिटल बनाती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और प्रोसेस का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज़्यादा मोर परसेंटेज करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एंड उतनी ही कम क्या हो जाएगी, उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब क्या करेंगे, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, एंड मोर विल बी द फोर्स कांस्टेंट, सो मोर विल बी द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्कीन के केस में देखते हैं, एल्कीन के केस में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी इसकी हमें चेक करनी है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसकी है sp2 और इसकी है sp। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज़्यादा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन बिटवीन द CH एटम इंक्रीज हो जाएगी, एंड CH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ऑल्सो इंक्रीज। थर्ड फैक्टर इज मास ऑफ द बॉन्डेड एटम। मास के केस में क्या देखेंगे, मोर द मास ऑफ द एटम, जितना ज़्यादा मास होगा लेसर विल बी द फोर्स कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, म्यू बार इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर द रूट के बाई म्यू, दैट इज मास के लिए, ये है जो है ये मास के लिए है, रिड्यूस्ड मास के लिए। तो जितना ज़्यादा मास उतनी ही कम जो होगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर CH, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज 2900, 1200, 1100, 800, 650। अब ये जो है ये डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मास इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम मास हो, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर आइसोटोप, मोर द नंबर ऑफ मास, मोर मास नंबर ऑफ द एटम, लेसर विल बी द फोर्स कांस्टेंट एंड लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ फैक्टर दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, मोर द प्लस साइड इफेक्ट, जितना ज़्यादा प्लस साइड इफेक्ट होगा लेसर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, उतना ही क्या कम क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, एंड मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेसर विल बी द फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो फोर्स कांस्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लोअर वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। देखो एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो 1725 है। लेकिन यहाँ पर जब प्लस का इफेक्ट आया तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो गई, 1720 हो गई। यहाँ पे 2 R है, प्लस R इफेक्ट है, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा कम होगी। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। Conjugation due to the presence of double bond at alternate position.
इफेक्ट देखेंगे जब डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन के अंदर है और वो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर है। इफ वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल ग्रुप, देन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ CO2 बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी बाय 30 सेंटीमीटर इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में है CO बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में 30 सेंटीमीटर इनवर्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। If one more double bond is present in the conjugation with carbonyl group, then the vibrational frequency of CO2 further decrease by 15। अगर इसके बाद एक और बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन के अंदर आता है तो इनके बीच में डिफरेंस होगा 15 का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस होगा 45 का। इसके बाद जो सिक्स फैक्टर है वो हमारे पास है तो रेजोनेंस का ही, बट अब की बार वहाँ पे डबल बॉन्ड का इफेक्ट था कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है, यहाँ पे लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। सो सेम मोड विल बी द प्लस आर इफेक्ट, लेसर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, more will be the bond length, lesser will be the force constant, and lower will be the value of vibrational frequency। इसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेसर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम हो जाएगा, एंड मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी उतनी ज़्यादा इंक्रीज, सो लेसर विल बी द फोर्स कांस्टेंट एंड लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी।